I welcome all of you here in this webinar. In this webinar, we are going to discuss very important issues, which is discussing everywhere in the government circle, in the teachers, among parents, and different section of the society. And that important issue is, number one, the reopening of school. You know that since 22nd March, all schools is being closed down, and children are at the home, and they are facing so many issues, so many problems, trauma, pain, and even hunger, and so many problems they are facing. So now when lockdown is going to be open, the discussion is started around the reopening of schools. Number one, we are going to discuss these issues. Second is the fee of the private schools. That is also a very debatable issue. And third is the online education. You know that every conversation inside the government, in other webinars also, so people are talking about the online. Or online is a big thing now. Most of the business companies, education business companies, they are engaged with this debate, and they are bringing their own model of online. Even I am getting surprised that NCERT is signing a memorandum of understanding with the Rotary Club. Rotary Club is nothing to do with education. We never heard that Rotary Club is doing some education issue, taking education issues. Now they have signed a memorandum of understanding with the NCERT, and they are going to prepare curriculum for the online education. So these are the issues are coming out. और आप जानते हैं कि we have access, only 30% access of online digital facilities and online facilities in the country, and the most of the 70% children belonging to marginalized and deprived communities, they have no even mobile smartphones in their hands. Children are not having that smartphones. Even laptop computer is in the rural areas, only 4% is available. So these are these major issues we are going to discuss in this webinar: the reopening of school fee issue, and third is the online. This big, creating a big digital divide, going to create a big digital divide. So these questions we are going to discuss here. और आप जानते हैं कि ये लॉकडाउन जो था उसमें बहुत सारा, और यहाँ इस वेबिनार में people are participating from north east, from southern part of the country, North India. So we will use English, Hindi both. It will be in bilingual, because some southern participants, they are requesting me that be careful about the language, so that they can participate and they can hear the voices of our panelists. तो एक तो दो बातें मुझे सिर्फ कहनी है शुरू में. एक तो ये कि आप सब अपने, जो लोग नहीं बोलेंगे वो लोग अपने वीडियो और माइक ऑफ कर लेंगे, ताकि कोई नॉइज क्रिएट ना हो, और हम सब जो है इसको फुल्ली एंजॉय कर सके. दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अब ये लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है, and everywhere people are coming in their offices, and they are on the road, and everywhere they are moving around. तो अब ये केसेस भी लेकिन बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और अहमदाबाद से पटना तक और नॉर्थ ईस्ट से कर्नाटका तक जहाँ पे देखिए वहाँ पे एक हाहाकार जैसी स्थिति है, because our health facilities, our preparation for the providing the health facility to the citizens, that is proving very poor. You know, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है. दिल्ली में तो हालत ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दे आर सेलिंग देयर बेड्स और पैसे मांगे जा रहे हैं.
तो इस तरह की हालत हो गई है और बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें भी, राज्य और केंद्र की सरकारें भी उन्होंने जनता को उनके अपने हाल पे छोड़ दिया है और वो जैसे चाहे वैसे रहे, इस तरह की सिचुएशन बनती चली जा रही है। और ऐसे समय में हमारे स्कूल ओपन करने की बहस चल रही है, एग्जामिनेशन की बहस चल रही है। मैं धन्यवाद साउथ इंडिया के कुछ राज्यों का जिन्होंने बच्चों को प्रमोट कर दिया और उन्होंने एग्जामिनेशन रद्द कर दिए। केरला और तमिलनाडु और कर्नाटक, तेलंगाना, इन 3 राज्यों का मैं उल्लेख करूंगा जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन जो है वो खत्म कर दिए और बच्चों को प्रमोट कर दिया नेक्स्ट क्लास में। जो हमारी शुरू से ये मांग रही है, केंद्र सरकार से ये मांग रही है कि ये आप काम करिए। इस समय की स्थिति में बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन देने के मूड में नहीं है, माने मेंटल हालत में नहीं है। तो ये सब बातें हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब केसेज बढ़ रहे हैं, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही एक्सपोज हो रही है धीरे धीरे और हालत बहुत खराब है, ऐसे समय में हमारे सरकारों ने लोगों को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया है और संकट को अवसर में बदलने के लिए इवन चुनाव की तैयारियां में वो उतर गए हैं। और आप जानते हैं कि चुनाव की तैयारी में कुछ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव की तैयारियों में उतर गए। बिहार जैसे राज्य में जहां के मजदूर वापस लौटे, भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर चल के उनको अपने जिलों में, अपने राज्य में वापस लौटना पड़ा है। उनके खाने का इंतजाम हम नहीं कर पाए, उनके वापस लाने का इंतजाम हम नहीं कर पाए। उनके बच्चे दोपहर की सड़क पर, जलती हुई सड़क पर पैदल चले। लेकिन हमने जो पहली चुनावी रैली देखी बिहार में, वर्चुअल रैली, उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो इस तरह की स्थिति है हमारे देश के अंदर। तो इसलिए हम समझते हैं कि आज इस पूरे माहौल में, इस परिवेश में हम इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे बीच चर्चा करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। हमने पिछले बार बहुत सारे वेबिनार में हमने बहुत सारे विचार हमारे शिक्षाविदों के सुने, एक्टिविस्ट के सुने। अभी हम राज्यों की भी तो तस्वीर है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या हो रहा है उन राज्यों में। तो हमारे बीच में अशोक अग्रवाल जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, पूरा देश उनको जानता है। गरीब बच्चों की शिक्षा हो या गरीब बच्चों की जिंदगी बचाने का सवाल हो, वो हमेशा अग्रिम मोर्चे पर रहे हैं और बहुत सारे फैसले हाई कोर्ट के जरिए भी उन्होंने गरीबों के हक में कराए हैं। तो वो है हमारे पैनलिस्ट, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ इस वेबिनार में। दूसरे हमारे प्रवीर बासु जी हैं जो वेस्ट बंगाल आरटी फोरम के कन्वीनर हैं और एक लंबा अनुभव है सामाजिक आंदोलनों का उनको, और एक लंबे समय से चाइल्ड लेबर के इशू पे भी और शिक्षा के मुद्दे पर वो काम करते आ रहे हैं, न केवल राज्य बंगाल में, दूसरे राज्यों में भी, और बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने CACL की अध्यक्षता की है। और तीसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो अनिल प्रधान जी हैं। अनिल प्रधान जी उड़ीसा में एक मशहूर एक्टिविस्ट हैं, एक प्रसिद्ध एक्टिविस्ट हैं। सरकार की विभिन्न कमेटियों के में भी वो रहे हैं, बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स पे भी उनका बड़ा पावरफुल इंटरवेंशन है। उड़ीसा के आरटी फोरम के वो अध्यक्ष कन्वीनर है। और ये हमारे जो बंगाल और उड़ीसा का आरटी फोरम है, ये सैकड़ों जो सामाजिक संगठन है, जन आंदोलन है, उनका एक कोलिशन है और उस कोलिशन के ये हमारे 2 कन्वीनर आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। और अशोक अग्रवाल जी, एक रिनाउंड शख्सियत इस देश की, वो अपनी बात रखेंगे। और इस पूरी बहस को मॉडरेट करने के लिए, और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, गीता वर्मा जो केयर इंडिया में गर्ल्स प्रोग्राम देखती हैं, उसकी हेड है और जिनका एक लंबा अनुभव रहा है शिक्षा के मुद्दे पर काम करने का, गर्ल्स एजुकेशन के मुद्दे पर काम करने का। और डॉक्टर गीता वर्मा है, वो PhD भी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो हमने उनको अनुरोध किया कि वो केयर भी हमारे आरटी फोरम का एक हिस्सा है, तो उन्होंने हमारा ये अनुरोध स्वीकार किया। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अब आप इस गीता वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस वेबिनार की पैनल डिस्कशन की शुरुआत करें। और आप सबसे ये अनुरोध है
कि ये वक्ताओं को सुनने के बाद आप अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख दें और चैट बॉक्स में जो आप सवाल लिखेंगे उन सवालों को फिर हमारी मॉडरेटर इन वक्ताओं के साथ जिनसे सवाल होगा उनसे पूछेंगी और अगर जनरल सवाल होगा तो फिर उस पर वो बहस चलाएंगे। वक्ताओं के उनके वक्तव्य के बाद एक 15 से 20 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर का ये सेशन रखेंगे। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में वासंती जी तमिलनाडु से दिखाई दे रही हैं, हमारे बीच में शांता सिन्हा जी दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो बहुत ही डिस्टिंग्विश ऑडियंस हमारे साथ है। तो मैं चाहूंगा कि अब इसकी शुरुआत हो।